So this is the syllabus contents for direct second year. As we all know that direct second year people, it's much hectic than before, that you have to study semester 3 as well as semester 4 examination. Okay. Uh, Now, this is the same syllabus for electrical and EXTC engineering. I'm just sharing the syllabus which is assigned by the university for the direct second year for 2021 only, for this semester or for this year only, because the due to pandemic, direct second year people could not have joined in August, September, so their admission is just have been confirmed, I guess, in the last month. So you have to study semester 3 as well as semester 4 courses simultaneously. Let us first of all see, this is, as you all know, that this is revised semester C 2019 C scheme examination. This is the syllabus copy of electrical, but EXCC also it is similar. As you all know that we are taking the lectures combining with electrical and EXCC students, because the number of students are not that much higher. So we have combined the classes for EXCC and electrical only for semester 3 math 3 moreover. Okay, so this is the course EEC 301 engineering mathematics 3. The theory lectures are 3 and one tutorial is there. Right now we are just conducting concentrating on our theory lectures, because tutorial sessions we can complete it afterwards as well. But we have to complete the syllabus in this, I guess, 1 or 2 months, 2 months, I guess, because this is February 20, March and April. Most probably in May you may have examinations, and most important, it may be a theory examination, a usual examination which will be conducted in offline mode, most probably. Not sure, because it depends upon the pandemic situations. So this is this theory lectures, three theory lectures and one tutorial session, right? Next is the examination schemes. As you all know, I guess a few of them or many of you have already joined in for the mathematics M4 lecture. So there also we have discussed this topic, that engineering mathematics 3 there will be one test 1 consisting of 40% syllabus, then test 2 out again 20 marks, test 1, test 2 20 marks, and its average will be taken. And then end semester examination, most probably in May or June, you have to give. If offline mode, then it is 80%, 80 marks. The duration will be 3 hours, and 25 marks is for term work. Term work, you, if you know, it is consist of three components. First is your tutorial, which we have to complete minimum 6 tutorial. Then the mini project, we give you one self learning topic, and you have to present it in the group, 2 3 people's group, as your strength is not that much big. So what we'll do, I will give you one topic, and you have to study it, and you have to represent it in the class, if it is in offline mode. If it is in online mode, if the pandemic situation doesn't get better, then we have to take it online. That in that case, you have to shoot your video, and then post it on YouTube and share me the link, right? Afterwards you can delete it, but unless and until I mark it, till then you have to keep it in YouTube channel, right? So this is 10 for tutorial, 10 for mini project, and 5 for attendance is compulsory for theory as well as tutorial sessions. So don't be absent, as it is online mode. It is much more easier for you to attend, but don't be attend physically physically only, be present mentally as well. So 80 plus 20 plus 25, that becomes 125 pattern, 125 marks pattern for same 3. Now this is the same 3 for engineering mathematics 1. These two things we have discussed. Prerequisite is for same 3 is engineering mathematics 1 and 2, scalar and vector product, and vector product of 3 and 4 vectors, right? Course objective: the course is aimed to familiarize with Laplace transform, inverse Laplace transform of various functions and its application, to acquaint with the concept of Fourier series, its complex form, and enhance the problem solving skills, to familiarize
The concept of complex variables, CR equations, harmonic functions, its conjugate and mapping in complex plane, to understand the basic of linear algebra in its application, to use concepts of vector calculus and to analyze and model engineering problems. This is course objective. Now course outcome. After successful completion of the course, a student will be able to apply the concept of Laplace transform to solve the real integrals in engineering problem. Apply the concept of inverse Laplace transform of various functions in engineering problem. Expand the periodic function by using Fourier series for real life problem and complex engineering problems. Fourth outcome is find orthogonal trajectories and analytic functions by using basic concepts of complex variables. Fifth one is illustrate the use of matrix algebra to solve the engineering problem. And the last but not the least, apply the concept of vector calculus in real life problems. So these are the course outcomes. After completing the course, you will be able to apply these concepts in your mathematical things as well as in your core subject as well. So first module is for Laplace transform. The university has assigned 7 lectures for it. It consists of Laplace and inverse Laplace. Second module is now these are the self-learning topic. Not that these self-learning topic I will give you as your mini project topics as well. So आप अभी से ही थोड़ा सा देखने लग जाओ इनको. ये आपके सिलेबस में है बट इन पे क्वेश्चंस आपको यूनिवर्सिटी में नहीं आएगा. ये सिर्फ मिनी प्रोजेक्ट के लिए आपको टॉपिक दिया जाएगा. You have to represent it or present it in a lecture form. वो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे. देन सेकेंड मॉड्यूल इज इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म. यूनिवर्सिटी ने 6 लेक्चर्स उसके लिए असाइन किए हैं एंड दीज आर द सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स. नेक्स्ट मॉड्यूल इज फोरियर सीरीज 7 लेक्चर्स. ये है उसके सेल्फ लर्निंग टॉपिक्स. Complex variable 7 lectures again. Then linear algebra 6 lectures and vector differentiation and integral 6 lectures. So total 6 plus 6 plus ये हो गया 12 19 ये हो गया 26 then 32 and 39 लेक्चर्स हमको चाहिए होंगे कंप्लीट करने के लिए और हमारे पास है मोस्ट प्रोबेबली 2 महीने से. तो 2 महीने में हमको कंप्लीट करना है तो लेक्चर्स हमको एक्स्ट्रा भी लेने पड़ेंगे. आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा. कितने लोगों ने ज्वाइन किया है अभी? लेट मी सी. 11 ही लोग हैं यानी 10 लोग ही अभी तक ज्वाइन किए हैं. यानी अगर ऐसा रहा तो मुश्किल हो जाएगी. आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा. मॉर्निंग में आपको घर से तो नहीं आना है राइट. आपको बस प्रेजेंट रहना है. सो मेरे ख्याल से इतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए कि आपको ज्वाइन करने के लिए. नोट दैट टोटल 39 लेक्चर्स चाहिए और हमारे एक वीक में होते हैं 3 या 4 लेक्चर. अगर 3 लेक्चर पकड़ते हैं तो 12 से 14 लेक्चर्स होंगे हमारे. 12 से 14 लेक्चर्स. हाँ तो 14 इंटू 14 28 हमको चाहिए मोस्टली 39 लेक्चर्स. तो 11 लेक्चर्स कम है. तो बी अलर्ट कि कभी भी आपको मैसेज आ सकता है कि हम लोग इस वक्त में लेक्चर लेंगे. आपको 1-2 घंटा पहले बता दूंगा मैं लेकिन हम लोग ले लेंगे लेक्चर्स बिकॉज हमारे पास टाइम कम है और बाकी जो सिलेबस है आपका बाकी सब्जेक्ट का सेम तरीका उससे ज़्यादा सिलेबस हमको पढ़ाना है. बाकी इसमें आपको बोला गया है कि आपको सिर्फ 50% सिलेबस ही पढ़ाना है. देखिए इसमें सिर्फ 3 मॉड्यूल है. ये जो कोर्स है इसमें 3 मॉड्यूल है. नहीं यहाँ पे 4 मॉड्यूल है बट सिलेबस कम है. सिलेबस का जो कंटेंट है वो कम है. हमारा क्या है कि हमको 100% सिलेबस पढ़ाना है. बाकी जगह पे 50% हुआ है. सो आपको तैयार रहना पड़ेगा. थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर को इस सेमेस्टर के लिए. नेक्स्ट सेमेस्टर से आपको नहीं रहेगा इतना डिफिकल्ट बट इस सेमेस्टर में आपको थोड़ा डिफिकल्ट होगा. सो अगर आपको कुछ डाउट वगैरह है मैं लेट मी अनम्यूट यू. अगर आपको डाउट है तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो. अभी 10 ही बच्चे स्टार्ट ज्वाइन किए हैं लेकिन अब मैं सिलेबस स्टार्ट कर दूंगा बिकॉज हम लोग बाकी रुक नहीं सकते हैं. रिकॉर्डिंग तो चल रहा है. अगर जिनको नहीं ज्वाइन करना है तो उनकी मर्जी है लेकिन हमको तो सिलेबस पूरा करना है. ठीक है. सो डाउट है तो पूछ सकते हैं. यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड देन यू कैन आस्क एनी क्वेश्चंस. है किसी को डाउट? अगर नहीं है then we'll start with the next topic. The first module
अब फर्स्ट मॉड्यूल हम लोग लैपलास से ही स्टार्ट करेंगे बिकॉज वो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस पर दो पार्ट है इसके। अब कुछ चीजें आपको खुद से भी करनी पड़ेगी। मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, वो आपको प्रैक्टिस करने होंगे। कुछ फॉर्मूलाज आपको बोलूंगा कि वो लेके आना है आपको, वो आपको लेके आने पड़ेंगे। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, सो फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ दिस सेमेस्टर इज लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब इसके कुछ वीडियोस मेरे चैनल पे पहले से ही है ऑलरेडी, आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हो। लेट मी सी, आपको कुछ कुछ शेयर कर सकता हूँ क्या मैं। तो कैसे होगा कि हम ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेंगे और साथ ही साथ वो वीडियोस भी आपको देखने होंगे, तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको एग्जैक्टली क्या क्या पढ़ना है, क्या 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 है जो आपके पास ऑलरेडी है। सो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल EM3 ना, EM3 का पहला लेक्चर लैपलास के लेक्चर्स हैं हमारे पास। एक मिनट है सिर्फ मैं चेक कर लेता हूँ। ये हमने पेंडेमिक के वक्त में रिकॉर्ड किए थे उनको। जो है, क्या आप ये आवाज़ सुन पा रहे हैं वीडियो जो चल रहा है उसका? नो सर। आवाज़ नहीं आ रही ना? नहीं। ठीक, ठीक है। सो वीडियोस है प्रेजेंट उसमें भी, वो भी आप गो थ्रू कर सकते हो। लेक्चर 1 वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। अभी फिलहाल में हम लोग स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट मॉड्यूल। Let me first of all write the models. Can you see this screen? Whatever I'm writing over here, ये दिख रहा है ना आपको? Okay, दिख रहा है ना? ठीक है। So the first module is Laplace transform modules. Laplace transform. Second module is inverse Laplace transform. Third module is Fourier series. Fourth module is complex variable. Complex variables. Fifth module is matrix theory, linear algebra. Matrix theory. Sixth module is vector differentiation and integral. Vector differentiation and integral. So these are the modules we have to study one by one. Let us first of all start with the first module, module number 1. Laplace transform. ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन से आते हैं। लैपलास जो कंसेप्ट है, लैपलास ट्रांसफॉर्म, द नेम ट्रांसफॉर्म सजेस्ट दैट इट
transforms the problem into some easier problem and then solve it. So whenever we are dealing in Laplace transform में क्या होता है कि जो प्रॉब्लम डिफिकल्ट लग रहा था आपको आपको उसको किसी और डोमेन में या किसी और इसमें फॉर्म में भेज देते हैं और फिर वहां से उसको सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन लाते हैं. तो इसीलिए इसको बोला जाता है लैपलास ट्रांसफॉर्म. नाम जो है लैपलास वो इस साइंटिस्ट की वजह से पड़ा है जिसने इसको डिस्कस जो है डेवलप किया था, पियरे सिमोन लैपलास. This scientists have discovered or developed this concept of Laplace transform for solving the difficult or tedious examples from one domain to another domain, right? So definition से start करते हैं. Definition of Laplace transform. Laplace transform. If f of t is a function of t satisfying certain conditions, then the definite integral phi of s equal to integration 0 to infinity e raised to minus st into f of t into dt. Call this equation number 1. अगर ये राइट हैंड साइड का जो लिमिट है अगर ये एग्जिस्ट होता है then it is called as the Laplace transform of the function f of t. if it exists then it is known as the Laplace transform is called the Laplace transform of f of t, and it is written by and is denoted by or written as Laplace of f of t equal to line integration 0 to infinity e raised to minus st into f of t into dt. So this is how the Laplace transform is defined. क्या है कि अगर एक फंक्शन है f of t satisfying certain conditions, कुछ conditions वो satisfy करेगा, then the definite integral मतलब जिनके लिमिट आपको दिए है ऐसा इंटीग्रेशन of e raised to minus st into f of t into dt, अगर ये राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन एग्जिस्ट है then it is called as the Laplace transform of the function f of t. राइट? समझ में आया इसको? नेक्स्ट कंसेप्ट इज piecewise continuous sufficient condition for existence of Laplace transform. Laplace transform कब exist होगा? ये theoretical part है, बस आपको समझना है इनको. Sufficient conditions for existence of Laplace transform. Existence of Laplace transform. क्या है sufficient condition? दो कंडीशंस है एक्चुअल में, एक है पीस वाइज कंटिन्यूटी एंड दूसरा है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर. पहले उन दोनों को डिस्कस करते हैं और फिर ये कंडीशन डिस्कस करते हैं. एक मिनट. ठीक. सफिशिएंट कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस. अब इसके लिए दो कंसेप्ट्स है, एक है पीस वाइज कंटिन्यूटी. पीस वाइज कंटिन्यूटी क्या है? A function f of t is said to be piecewise continuous in an interval
ये बस समझना है आपको पीस वाइज। आपको लगेगा कि ये थ्योरेटिकल मॉड्यूल तो नहीं है, थ्योरेटिकल मॉड्यूल नहीं है, बस कुछ कंसेप्ट से फॉर्मूला स्ट्रेट फॉरवर्ड दिए हैं, वो आपको देखने हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही एग्जाम्पल को सॉल्व करना है, इतना ही है। ए फंक्शन एफ ऑफ टी इज सेड टू बी पीस वाइज कंटिन्यूअस in an interval if the interval in an interval if the interval can be divided can be divided into a finite number of into a finite number of subintervals subintervals such that in each case of in each of these in each of these subintervals in each of these subintervals, first your function f of t is continuous, and second that the limit of f of t, limit of the function f of t as t tends to the endpoints, as t tends to the endpoint are finite. सो पीस वाइज कंटिन्यूस क्या होगा, कोई भी फंक्शन को हम लोग पीस वाइज कंटिन्यूस बोलेंगे किसी इंटरवल में इफ द इंटरवल कैन बी डिवाइडेड, उस इंटरवल को इफ वी डिवाइड इट इनटू फाइनाइट नंबर ऑफ सब इंटरवल्स सच दैट जितने भी इंटरवल्स फाइनाइट नंबर ऑफ इंटरवल्स आपने जो है डिवाइड किया है, हर एक इंटरवल में जो है आपका फंक्शन कंटिन्यूस होगा और उसकी जो लिमिट है एज टी टेंड्स टू एंड पॉइंट्स फाइनाइट होगी, इन्फिनिटी नहीं होगी। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं देन यू कैन से दैट योर फंक्शन इज पीस वाइज कंटिन्यूअस, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट है पीस वाइज कंटिन्यूअस। पीस मतलब टुकड़े, राइट। पीस वाइज मतलब हर एक टुकड़ों में या हर एक सब इंटरवल्स में आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होना है, तो उसको बोला जाता है पीस वाइज कंटिन्यूअस, राइट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। ये दोनों कंसेप्ट को हमको समझना है ताकि हम लोग देख सके एग्जिस्टेंस ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म या लैपलास ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट होगा, राइट। एक्सपोनेंशियल ऑर्डर क्या है, ए फंक्शन एफ ऑफ टी is said to be of exponential order for t greater than capital T if we can find a constant capital M, we can find constant capital M and small a such that the absolute value of the function f of t is less than or equal to m e raised to at. This is for all for t greater than capital T. So a function is said to be of exponential order for t greater than capital T if we can find a constant capital M and A। ऐसा M और एक A ऐसा find out कर पाया कि इसकी जो absolute value है इस function की वो always less than this M into e raised to at होगा for any t greater than capital T। So अगर ऐसा होता है, ये condition satisfy करता है, तो आप उस function को बोलेंगे function is of exponential order, right। and therefore using these two concepts आपकी जो existence of Laplace transform है उसके लिए theorem दिया है। theorem says that, खाली statement आपको समझनी है। theorem says that कि if your function f of t is piecewise continuous in every finite interval 0 to capital T,
एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, यानी दोनों कंसेप्ट आपको ये जरूरी है। एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फॉर t greater than capital T, we can find, if we can find, एक मिनट, and is of exponential order for t greater than t, then Laplace transform of the function f of t exists for s greater than a। सो अगर दो कंसेप्ट आपके समझ में आ गए तो एग्जिस्टेंस के लिए क्या बताया उन्होंने कि आपका फंक्शन अगर पीस वाइज कंटिन्यूअस है फॉर इन एवरी फाइनाइट इंटरवल 0 to t एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फॉर t ग्रेटर देन t, देन ए लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट होगा। यानी दो कंडीशन जरूरी है एग्जिस्टेंस के लिए, एक है पीस वाइज कंटिन्यूअस और दूसरा है एक्सपोनेंशियल ऑर्डर। आया क्या समझ में है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट होगा? जब उस वो जो फंक्शन है उस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म कब एग्जिस्ट होगा? जब वो फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस होगा और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होगा। आया सबको समझ में बॉयज? ठीक है, अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज पे। अब यहाँ से फॉर्मूला शीट शुरू होता है। आपको सिर्फ इस टॉपिक में या इस मॉड्यूल में फॉर्मूला देखना है और उसको अप्लाई करना है, इतना ही करना है, कोई थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है। इक्का दुक्का अगर थ्योरम होता है तो ठीक है, अदरवाइज सारे फॉर्मूलाज ही आपको याद रखने होंगे। ठीक है, सबसे पहला है लीनियरिटी प्रॉपर्टी। ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे लेकिन ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, द लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेज दैट if k1 and k2, if k1 and k2 are constants, then Laplace transform of the function, उस फंक्शन है f1, उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं k1 से, k1 इंटू f1t प्लस k2 इंटू f2 of t is given by k1 into Laplace of f1 of t plus k2 into Laplace of f2 of t. This is called as the linearity property for functions। इसका एक्चुअल मीनिंग क्या हो रहा है? देखो, अगर आपका कोई फंक्शन दिया है और उसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है और आपको एक और फंक्शन है उसको भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई है, अगर आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करना है तो ये प्रॉपर्टी बता रही है कि आप जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लो और जो एक्चुअल फंक्शन है सिर्फ उस पे लैप्लास अप्लाई करो। सिमिलरली यहाँ पे भी k2 को बाहर ले लेंगे और सिर्फ f2 पे लैप्लास अप्लाई करेंगे एंड दे, और फिर आप ये फंक्शंस के जो भी फंक्शंस रहेंगे उनको अकॉर्डिंगली आप क्या करेंगे? लैप्लास फाइंड आउट करेंगे। ये हुई सबसे पहली आपकी जो प्रॉपर्टी है वो। अब आते हैं स्टैंडर्ड फंक्शंस के लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे। स्टैंडर्ड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस, कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस है उनके लैप्लास है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शंस। Laplace transform of standard functions, right? सबसे पहला फॉर्मूला है that Laplace transform of k, यानी किसी कांस्टेंट का Laplace ट्रांसफॉर्म कितना होगा? Laplace transform of k is given by k upon s। ठीक है, this is the first formula। Second formula is Laplace transform of 1, Laplace transform of 1 is 1 upon s। थर्ड फॉर्मूला इज लैप्लास, सिर्फ आपको समझने हैं फॉर्मूलाज। एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू ए टी। अगर यहाँ पे प्लस a है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1 अपॉन s माइनस a, s शुड बी ग्रेटर देन a। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेस टू ए टी, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस होगा, वेर एज अगर ये माइनस है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे e रेस टू माइनस ए टी है तो डिनोमिनेटर में होगा 1 अपॉन s प्लस a, s इज ग्रेटर देन a। ठीक है, नेक्स्ट है
नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c रेज टू a t इज इक्वल टू 1 अपॉन s माइनस a इंटू लॉग ऑफ c, राइट। नेक्स्ट फॉर्मूला आपको बस समझने हैं फॉर्मूलाज को। नेक्स्ट फॉर्मूला इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ऑफ a t। Laplace transform sin of at is given by a upon s square plus a square, right? Seventh formula is Laplace transform of cos of at। cos of at है, cos 2t हो सकता है, cos t हो सकता है, cos 3t हो सकता है, sin 3t हो सकता है, बस एक ही वैल्यू चेंज होगी सिर्फ, राइट। सो cos के लिए Laplace ट्रांसफॉर्म होता है, इट इज गिवन बाय s upon s square plus a square। s शुड बी ग्रेटर देन 0, s की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन होनी चाहिए, ठीक है, दोनों के लिए। दिख रहा है सबको? नेक्स्ट कंसेप्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला है हाइपरबोलिक के लिए, ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री के लिए। अब है हाइपरबोलिक फंक्शंस। लैप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ऑफ ए टी इज गिवन बाय, यही फॉर्मूला होता है, बस डिनोमिनेटर में अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आएगा, सो ए अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। नाइन्थ फॉर्मूला लैप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ऑफ ए टी, अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आएगा माइनस, एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, प्रोवाइडेड दैट एस इज ग्रेटर देन मॉड्यूलस ऑफ ए। आया समझ में बॉयज? ठीक है, ये हुआ नाइन्थ फॉर्मूला। देन टेंथ फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 10 इज लैप्लास ऑफ टी रेज टू एन। अब इसके दो फॉर्मूला है, एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव इंटीजर है यानी 1 2 3 4 है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, और एन की वैल्यू अदर देन पॉजिटिव इंटीजर है तो उसके लिए दो फॉर्मूला है। एक है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू एन इज गिवन बाय गामा एन प्लस वन। अब बीटा गामा फंक्शन आपने फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा है तो वो गामा फंक्शन का होता है वैल्यू, वो मैं आपको बाद में गामा के डेफिनेशन बता दूंगा। रेज टू डिवाइड बाय एस रेज टू एन प्लस वन, ये है फॉर एनी एन। फॉर यहाँ पे कंडीशन है दैट एन प्लस वन शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड एस शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है, ये है कंडीशन सिर्फ। और दूसरे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज टू एन, दिस इज फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर। सो अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो आपका फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू n प्लस वन। दिस इज इफ n इज पॉजिटिव इंटीजर। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो क्या होगा, आपका फॉर्मूला ये होगा। अगर n पॉजिटिव इंटीजर के अलावा है, टी रेज टू वन हाफ है, टी रेज टू थ्री है, सॉरी टी रेज टू माइनस 3/2 प्लस 3/2 है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर टी क्यूब टी स्क्वायर टी रेज टू 5 है तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये हुए 11 फॉर्मूलाज। अब आते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला पे, फॉर्मूला नंबर 12, पेज नंबर 2। फॉर्मूला नंबर 12 ये है एरर फंक्शन के लिए, डिनोटेड बाय ई आर एफ ऑफ स्क्वायर रूट टी। एरर फंक्शन स्क्वायर रूट टी इज गिवन बाय 1 अपॉन एस अंडर रूट एस प्लस वन। दिस इज द फॉर्मूला। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखने होते हैं, जितने भी फॉर्मूला मैं दे रहा हूँ वो आपको बस याद रखने हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट है 13th फॉर्मूला। 13th फॉर्मूला इज Laplace transform of error function of square root t to the base c, any constant to the base any constant is given by under root s plus 1 ब्रैकेट के अंदर अंडर रूट s प्लस वन, रूट के बाहर है प्लस वन रेज टू पावर वन। ये है आपका एरर फंक्शन, right? So these 13 formulas are very important for understanding the next concepts for Laplace transform। एक बार बस देख लो, फिर हम लोग इस पे एग्जांपल देखते हैं बेसिक, और फिर हम लोग आगे की कंसेप्ट पे जाएंगे। So these are the definition है आपकी
Laplace transform of f of t is 0 to infinity e raised to minus st into f of t into dt. अगर ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट है तो दिस इज नथिंग बट द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ टी एंड देन दीज फॉर्मूलाज. एक लीनियरिटी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि अगर कांस्टेंट से फंक्शन से मल्टीप्लाइड तो कांस्टेंट को बाहर लो और एक्चुअल फंक्शन पे लैप्लास यूज करो. और ये है फॉर्मूलाज, सम बेसिक फॉर्मूलाज रिलेटेड टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म. समझ लो इसको, फिर हम लोग बेसिक एग्जांपल्स देखते हैं. आ रहा है सबको समझ में? देख लिए क्या? मैं आपका अटेंडेंस ही बना रहा हूँ, तब तक आप फॉर्मूला देख लो. आज का डेट है 22. बस 1 मिनट दीजिए, फिर हम लोग एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं इस पे. ठीक है. ऑलराइट, सो एग्जाम्पल देखिए, अभी देख लिए फॉर्मूलाज आपने, सबने देख लिए ना? ऑलराइट, अब आते हैं एग्जाम्पल्स पे.
ये हुए बेसिक फॉर्मूलाज। अब उस पे बेस्ड एग्जांपल देखते हैं। सिंपल सिंपल एग्जांपल पहले शुरू करते हैं। वो फॉर्मूला मैं आपके सामने रखूंगा ताकि आपको समझ में आए। अब्दुल सबूर प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपके सामने रख रहा हूँ और फिर एग्जांपल सॉल्व करता हूँ मैं आपके सामने ही। उसको देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला हमको यूज करना होगा। पहला एग्जांपल है फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। क्वेश्चन आपको हमेशा आता है फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एल टी, ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये बड़ा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी स्क्वायर करना है तो सबसे पहले तो टी का पावर कितना है, 2 है, राइट। सो टी स्क्वायर हियर वी नो दैट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी रेज़ टू एन। अब टी रेज़ टू एन के दो फॉर्मूलाज हैं। एक है ये वाला फॉर्मूला गामा एन प्लस वन डिवाइड बाई एस रेज़ टू एन प्लस वन, लेकिन ये जनरल फॉर्मूला है। और अगर आप n देखेंगे तो हियर n की वैल्यू है आपकी 2 विच इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 0 1 2 3 4, इंटीजर मतलब होल नंबर, एंड पॉजिटिव मतलब प्लस में साइन। सो n इक्वल टू 2 इज अ पॉजिटिव इंटीजर, तो आप यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो फॉर्मूला इज n फैक्टोरियल डिवाइड बाय s रेज़ टू n प्लस 1। so n की वैल्यू है 2, so this is 2 factorial divided by s raised to 2 plus 1, and therefore your answer will be 2 upon s cube। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2, t raised to 3 by 2। अब t raised to 3 by 2, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई, 3 by 2 आ गई। ये होल नंबर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। सो आप क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, एंड देयरफॉर दिस विल बी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t raised to n will be gamma n plus 1 divided by s raised to n plus 1, लेकिन gamma 3 by 2 plus 1 that will be s raised to 3 by 2 plus 1। so ये बन जाएगा gamma 5 by 2 divided by s raised to 5 by 2। ठीक है। so इस तरह से इसका आंसर होगा। आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। गामा n को आप लिख सकते हो गामा n माइनस वन इंटू गामा n माइनस वन, एंड सो ऑन। सो ये आ जाएगा 5 by 2 माइनस वन इंटू गामा 5 by 2 माइनस वन डिवाइडेड बाय s रेज टू 5 by 2। दिख रहा है क्या आपको? नेक्स्ट सिंप्लीफाई करो इसको, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू 3 by 2 होगा। 5 by 2 माइनस वन इज 3 by 2, गामा 3 by 2 डिवाइडेड बाय s रेज टू 5 by 2। अब गामा 3 by 2 भी एक फंक्शन है और गामा की वैल्यू है, गामा का फॉर्मूला है ये वाला, बीटा गामा फंक्शन आपको देखना होगा, उसकी डेफिनेशन ऐसी है। सो दिस विल बी 3 by 2, 3 by 2 minus 1 into gamma 3 by 2 minus 1 divided by s raised to 5 by 2। आप तब तक जा सकते हो जब तक ये निगेटिव नहीं होता। और ऑल्सो नो दैट gamma 1/2 is under root 5, ये भी फॉर्मूला आप याद रखो। मैं बॉक्स में जो दे रहा हूँ ये पहले सेमेस्टर्स में हुआ जो फॉर्मूला है वो है, गामा 1/2 होता है रूट पाई। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, दिस विल बी 3 by 2, वो 3 by 2 minus 1 is 1 by 2 into gamma 1 by 2 divided by s raised to 5 by 2, and therefore this will be 3 by 4, ये होगा रूट पाई डिवाइडेड बाय s raised to 5 by 2। ये है आपका फाइनल आंसर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड है समझ में आया कैसे कर रहे हैं? बेसिक बेसिक फॉर्मूलाज, मैं आपको वो फॉर्मूलाज बता रहा हूँ कि कौन से फॉर्मूला से हम लोग उसको सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू 2t। ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू 8t कितना है, यहाँ पे है e रेज़ टू 8t, दिख रहा है कि आपको? एक मिनट, हाँ, e रेज़ टू 8t होता है 1 अपॉन s माइनस ए, अगर प्लस है तो s माइनस है, माइनस है तो s प्लस है। सो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to at is 1 upon s minus a, बराबर है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हेयर a की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करता हूँ तो a की वैल्यू है 2, एंड देयरफॉर वी हैव लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e raised to 2t is 1 upon s minus 2। वन लाइन आंसर है ये, एक्चुअली ये बस समझने के लिए आपको दिया है। नेक्स्ट है
फोर्थ क्वेश्चन, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू -4t। अब यहाँ पे लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू -8t का फॉर्मूला क्या होता है? एक मिनट, आपको डिस्ट्रैक्शन ना हो, एक ही पेज बताता हूँ। लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू -8t, अगर यहाँ पे माइनस है तो आपका फॉर्मूला होता है प्लस के लिए, राइट। एंड हियर आपका a की वैल्यू कितनी है? -4 या +4 ही है, समझ लीजिए। सो यहाँ पे होगा फॉर्मूला लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज़ टू -4t इज 1/s + 4। आया क्या समझ में? Similarly, next example, example number 5, Laplace transform of sin of 80। sin of 80 है। अब आपको पता है कि Laplace transform of sin of 80, ये तो आ जाएगा, 2t कर देता हूँ मैं इसको, a की वैल्यू 2 कर देता हूँ, क्योंकि ये तो फॉर्मूला हमने 80 वाला किया था, राइट। सो डाउट रहेगा तो प्लीज आप अगर अनम्यूट नहीं कर सकते तो चैट में आप मुझे करो या रेज योर हैंड, तो मुझे समझ में आएगा कि आपको डाउट है कुछ। ठीक है, नेक्स्ट है, अगर आप देखेंगे तो लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80 का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 80? a/s² + a², बराबर है। अगर आप इसको कंपेयर करते हैं इससे तो आपको a की वैल्यू कितनी दिखती है? हियर a is 2 and therefore Laplace transform of sin of 2t will be nothing but a की वैल्यू 2 है, वो पुट करेंगे 2/s² + 2², that will be 2/s² + 4। आया क्या समझ में? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 है, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ t। अब cos ऑफ 80 का आपके पास था फॉर्मूला, वो है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 80 इज s/s² + a², लेकिन यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है? हियर a इज 1, अगर नहीं दिख रहा है मतलब 1 है, राइट। तो ये therefore this become Laplace transform of cos of t is equal to s/s² + 1²। आया क्या सबको समझ में? सिंपल सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ, ये बहुत बेसिक है। Seventh question is find Laplace transform of hyperbolic functions sin of hyperbolic 3t। तो आपको पता है Laplace transform of sin hyperbolic of 80 कितना होता है? यही फॉर्मूला, बस यहाँ पे माइनस होता है। सो दिस इज a/s² - a²। यहाँ पे आपको a दिखेगा, a कितना है? 3 है, एंड देयरफॉर Laplace transform of sin hyperbolic of 3t is equal to 3/s² - 3²। अब आप चाहिए तो नेक्स्ट स्टेप में 9 लिख दो, दैट्स इट, ये है आपका आंसर। सिमिलरली ये होमवर्क दे देता हूँ, लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos हाइपरबोलिक ऑफ 2t। ओरली आप बता सकते हो, ये होगा s² - 2², बराबर है। तो आगे आपको समझ में आ गए सारे फॉर्मूलाज? आ रहा है सबको समझ में? बराबर है क्या? अब अब ये तो हुए सब बेसिक एग्जांपल्स, जहाँ पे आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल सा फॉर्मूला पूछा है, वो आपने सॉल्व कर लिया है। अब जरूरी नहीं कि आपको सिर्फ इतना ही आएगा, आपको लिनियरिटी प्रॉपर्टी का जो है कॉम्बिनेशन आ सकता है, आपको एक्चुअल फंक्शंस भी 2-3 फंक्शंस एक साथ क्वेश्चन आ सकता है, तो ये सारे होंगे। तो उस केस में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ तक के क्लियर हुए क्या? लेट मी अनम्यूट योरसेल्फ, यू। हाँ, अब बताओ सबको समझ में आ गए ये बेसिक एग्जांपल्स? आपको मैं नोट्स भी शेयर करूंगा और वीडियो भी शेयर करूंगा ग्रुप में, तो आप वो यस सर। कर लेना है। बस अगर आपको डाउट है तो पूछ सकते हैं, या बाद में भी पूछेंगे तो चलेगा, ठीक है। अब आप मुझे, सर हाँ बोलिए। वो फैक्टर का सिंबल कहाँ चला गया? कहाँ पे? यहाँ ये टू ऊपर फैक्टोरियल सब। वाला ना? जी ये वाला ना? टू फैक्टोरियल जी कितना सर। होता है? 2 × 1। तो 2 × 1 अच्छा तो 2 रह जाएगा ना। आप चाहिए जी लिख के सर। रखो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। n फैक्टोरियल का फॉर्मूला होता है n × n-1 × n-2 and so on 3 2 1। अब आपका 2 फैक्टोरियल तो 2 × 1 आ जाएगा, 2 × 1 is 2। आया समझ में? ठीक है ठीक जी है। सर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
थोड़ा डिफिकल्ट अभी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब 2-3 पार्ट में क्वेश्चन है, 2-3 फॉर्मूला एक साथ सॉल्व होंगे इसमें। देखो एग्जांपल है, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 4t² plus sin of 3t plus e⁻²t। ये ठीक है। अब यहाँ पे 3 फंक्शंस है, एक है t² का, एक है sin of at का, और एक है t⁻n का, एक है sin of at का, और एक है e⁻at का। और तीनों को सॉल्व करने के लिए आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। सो सबसे पहले तो अप्लाइंग लैप्लास ऑन बोथ साइड्स, ऑन दिस साइड 4t² plus sin of 3t plus e⁻² बराबर है। अब अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो लीनियरिटी प्रॉपर्टी से क्या होगा, कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, लिखना है तो लिखो, यहाँ पे भी 1 है, बराबर है। एंड देयरफॉर बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी ये बनेगा 4 into लैप्लास ऑफ t² प्लस लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 3t प्लस लैप्लास ऑफ e⁻²t बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। दिस इज बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। लीनियरिटी प्रॉपर्टी है, समझ में आई है ना, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, राइट। सिंप्लीफाई दिस, एक मिनट, मैं ये क्वेश्चन कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद अटेंडेंस ले लेता हूँ 8 to 9 की। ये होगा 4 into लैप्लास ऑफ t²। अब 4 into लैप्लास ऑफ t⁻², यहाँ पे n की वैल्यू है 2, यहाँ पे a की वैल्यू है 3, और यहाँ पे a की वैल्यू है 2। आपको 3 फॉर्मूलाज की जरूरत है, एक है t⁻n, एक है sin of at और एक है e⁻at का। तो ये बनेगा 4 into लैप्लास ऑफ t² का फॉर्मूला कितना होगा t⁻n के लिए, दैट विल बी, क्योंकि n पॉजिटिव इंटीजर है तो आप फॉर्मूला यूज करेंगे 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, हाँ कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है। s⁻² + 1 प्लस साइन ऑफ, क्या है, साइन ऑफ 3t है। साइन ऑफ 3t इज, फॉर्मूला क्या होगा इसका, साइन है तो a की वैल्यू है 3/s² प्लस a² है 3² एंड e⁻at प्लस 2 है तो क्या होगा, दिस विल बी 1/s-2 एंड देयरफॉर 2 फैक्टोरियल होता है 2 into 4 is 8/s³ s⁻³ plus 3/s² plus 9 plus 1/s-2. So this will be your answer for this question. All of you agree? अब मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ, बिकॉज क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल वाले कौन कौन प्रेजेंट है मुझे बता दो सिर्फ, रोल नंबर बता सकते हो, डायरेक्ट सेकंड ईयर 34 डायरेक्ट सेकंड ईयर इलेक्ट्रिकल ना, yes sir 34, हाँ ठीक है। 39 39 ओके 16 16 24 एक मिनट 16, हाँ नेक्स्ट 35 18 सर। देखो आप लोग या तो डायरेक्ट DEE वाला बोलो या DSY वाला बोलो, DEE वाला बोलो ना, DEE 16 ठीक है, 16 है ही नहीं DEE वाला, एक मिनट यार ये भी ना सॉर्ट करके नहीं रखे इन्होंने, हाँ 16 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 24 एक एक बोलो ना, 36 बराबर, 24 DEE 18 एक मिनट बेटा, 36 दिख ही नहीं रहा मुझे, है 36 कौन बोल रहा है, क्या नाम है इसका, DEE 18 तो ये 36 क्यों बोल रहा फिर, एक मेहताब नंबर ही नहीं मिल रहा, सर मेरा 02 एक मिनट DEE 01 है क्या, आफाक है, ना जो तुमको अच्छा लगे वही करो। हाँ आफाक नहीं है, अब देखो सबसे पहला ये Z है, Z को उंगली नहीं करने का, Z को रहने देने का।
भोजेश है क्या? एक काम करता हूँ, मैं फाइनली अटेंडेंस लूंगा, छोड़ो जाने दो, नेक्स्ट टाइम से देखेंगे कैसे करना है, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट होगा 3 लेक्चर्स का देखना। ठीक है, मैं अटेंडेंस डायरेक्टली नोट डाउन कर लूंगा बाद में। ऑलराइट, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं फिर, बिकॉज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम लोग अटेंडेंस का देखें। आप लोग बस रेगुलर रहो क्योंकि ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, नेक्स्ट एग्जांपल है sin of 2t माइनस कॉस ऑफ 2t होल स्क्वायर, राइट। सबसे पहले तो इसको एक्सपैंड करना होगा आपको, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, राइट। सो sin of 2t minus cos of 2t whole square will be sin of is equal to sin of 2t minus cos of 2t whole square is sin square 2t minus 2 sin 2t cos of 2t plus cos square 2t. ये हुआ सिर्फ simplification of this bracket, right? Now applying Laplace on both sides, this is sin of 2t minus cos of 2t whole square. This will be applying the Laplace on both sides of this as well. ये आपको एग्जाम में लिखना होगा, पूरा लिखना पड़ेगा ये। Then या फिर लिख लो sin of 2t minus 2 sin of 2t into cos of 2t। इसको थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा। एक काम करते हैं, इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रहा है, इसका लैप्लास आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, इसका भी कर सकते हो, लेकिन रेज़ टू पावर में रहेंगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो बेटर है कि इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, ये नहीं करते, बिकॉज इसमें क्या करते हैं कि लैप्लास ऑफ साइन ऑफ 2t माइनस कॉस ऑफ 2t होल स्क्वायर is equal to Laplace of 1 minus 2 sin 2t into cos of 2t। ये है फॉर्मूला ऑफ sin 2t minus cos 2t का फॉर्मूला, राइट। अब होल स्क्वायर का लिए, अब ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बता देना, मैं और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूंगा। अब यहाँ पे 1 minus 2 sin थीटा cos थीटा होता है sin of 2 थीटा, सो यहाँ पे 2t है, उसका डबल हो जाएगा, तो ये होगा 1 minus sin of 4t। और अब आप लैप्लास यूज कर सकते हो, लैप्लास ऑफ 1 माइनस लैप्लास ऑफ sin of 4t। हमने इसको सेपरेट किया यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी। दिस विल बी 1 upon s, लैप्लास ऑफ 1 इज 1 upon s माइनस इसका होगा a की वैल्यू है 4 अपॉन s स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, राइट। ये होगा आंसर। अब आपको प्रॉब्लम आएगा कि सर ये फॉर्मूला कौन से हमने यूज किए हैं। तो सबसे पहले देखो यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचे, देखो जब आप एक्सपैंड करते हो ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ये अगर मैंने रफ नहीं किया होता तो भी चलता था, सिर्फ इतना ही रफ करता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि हम यहाँ पे 1 कैसे पहुंच गए। देखो साइन स्क्वायर 2t माइनस 2 साइन 2t, ये राइट स्टेप है। मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ इसको, ये नहीं है, ये हमने कट किया था, उसको हटा दे रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे हो रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, इसीलिए वो 1 हमने यहाँ पे लिखा। और ये जो क्वांटिटी है माइनस 2 साइन 2t कॉस 2t, वो एज इट इज रखना, ठीक है। अब 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है इज साइन ऑफ 2 थीटा, वो फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया। थीटा यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे डबल होता है, यहाँ पे 2t है तो उसका डबल होगा 4t, ठीक है। फिर आपने लीनियरिटी प्रॉपर्टी यूज किया, दोनों को सेपरेट किया और फिर सॉल्व किया। आया क्या समझ में सबको? ठीक है बॉयज, आ रहा है समझ में? यस सर। ऑलराइट, यस सर। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin raised to 5t। अब इसके लिए 2 फॉर्मूलाज है, लेकिन आप एक ही यूज करो। आपको पता है कि sin of t का फॉर्मूला होता है e raised to it माइनस e raised to माइनस it डिवाइडेड बाय 2i। अगर ये याद नहीं है तो आप sin of थीटा
इज इक्वल टू ई रेस टू आई थीटा माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा डिवाइड बाय 2i। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म, कॉम्प्लेक्स नंबर में होता, फर्स्ट ईयर में टॉपिक था ये, उसमें ये फॉर्मूला था। बस यहाँ पे t है, अब आपको रेस टू 5 पावर करना है। सो क्या करेंगे, साइन रेस टू 5t इक्वल टू ई रेस टू आई टी माइनस ई रेस टू माइनस आई टी डिवाइड बाय 2i रेस टू 5 होगा, राइट। अब डिनोमिनेटर का रेस टू 5 तो आप इजीली कर सकते हो, 2 रेस टू 5 होता है 32 और i रेस टू 5 होगा, i रेस टू 5 होगा आई क्यूब इंटू आई स्क्वायर। आपको पता है आई क्यूब कितना होता है माइनस आई, और आई स्क्वायर होता है -1, इसलिए i रेस टू 5 होगा सिर्फ i, ठीक है। एंड देयरफॉर ये फॉर्मूला बनेगा, दिस विल बी नथिंग बट 1/32i, और यहाँ पे a माइनस बी रेस टू 5 है। अब a, इसके लिए आप पास्कल ट्राइंगल यूज करेंगे। पास्कल ट्राइंगल में आपको बता, देखो मैं जितना भी है वो यहाँ पे आपको नोट डाउन करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो बाद में। अब अगला फॉर्मूला है पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल को कुछ इस तरह से लिखते हैं, पहले 1 a प्लस बी रेस टू 0 रहेगा ना, तो आप उसका होता है एनीथिंग रेस टू 0 इज 1। a प्लस बी रेस टू 1 रहेगा ना, तो वो होता है a प्लस बी ही होता है, राइट। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पे और यहाँ पे 1 1 लिखते हैं, और इन दोनों का एडिशन है 2, वो यहाँ पे लिखते हैं। ये फॉर्मूला है फॉर a प्लस बी रेस टू 2, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये जो है वो कोएफिशिएंट्स होते हैं। नेक्स्ट है a प्लस बी होल क्यूब, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एंड पॉइंट पे 1 1 लिखते हैं, इन दोनों का एडिशन 3 और इन दोनों का एडिशन 3। ये फॉर्मूला है फॉर a प्लस बी होल क्यूब। ये कोएफिशिएंट्स है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस b क्यूब के लिए। नेक्स्ट है 1 1, इन दोनों का एडिशन है 4, इन दोनों का एडिशन है 6, इन दोनों का एडिशन है 4। ये है a प्लस बी रेस टू 4 के लिए फॉर्मूला, राइट। नेक्स्ट 1 1, ये है 1 प्लस 5 4 5, ये होगा 10, ये होगा 10, ये होगा 5। ये है फॉर्मूला फॉर a प्लस बी रेस टू 5। दिस इज कॉल्ड एज ये है पास्कल ट्राइंगल। दिस इज कॉल्ड एज पास्कल ट्राइंगल। पास्कल ट्राइंगल आपको जो है वो फॉर्मूलाज देता है या फिर कोएफिशिएंट्स देता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब आपको a रेस टू बी a माइनस बी रेस टू 5 बोला है, हमने तो प्लस के लिए फॉर्मूला लिया है, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस अल्टरनेट साइन देना है। जो कोएफिशिएंट्स है 1 प्लस 5 10 10 5 1, इसमें क्या करेंगे, इसको प्लस साइन, इसको माइनस, इसको प्लस, इसको माइनस, प्लस माइनस, इस तरह से करेंगे। एंड देयरफॉर e रेस टू आई टी माइनस e रेस टू माइनस आई टी रेस टू 5 होगा। अब आप इसको एक्सपैंड करेंगे, हम अभी तक भी जो है सिर्फ साइन रेस टू 5t को एक्सपैंड कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग उस पर लैप्लास अप्लाई करेंगे। सो कंटिन्यूइंग दिस, क्योंकि ये लेंथी है तो मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ। दिस इज 1/32 इंटू आई, इनसाइड ये होगा a रेस टू 5, यहाँ पे है ये, इसको मैं अगर लिखूँ तो दिस इज यहाँ पे a रेस टू 5 माइनस 5 a रेस टू 4 इंटू बी प्लस 5 a क्यूब इंटू बी स्क्वायर प्लस 5 के बाद में 10 होगा, ये 10, देन माइनस 10 a स्क्वायर b क्यूब प्लस 5 a इंटू बी रेस टू 4 माइनस b रेस टू 5, इस तरह से होगा ये फॉर्मूला। तो वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अब ये थोड़ा और लेंथी हो जाएगा, यहाँ पे होगा e रेस टू आई टी रेस टू 5, दैट इज e रेस टू 5 आई टी माइनस 5 e रेस टू 4 आई टी इंटू e रेस टू माइनस आई टी, ठीक है। a यहाँ पे e रेस टू आई टी है, b यहाँ पे माइनस e रेस टू माइनस आई टी है, देन प्लस 10 e रेस टू 3 आई टी e रेस टू माइनस 2 आई टी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ तक हुआ, फिर माइनस साइन 10 e रेस टू 2 आई टी e रेस टू माइनस 3 आई टी, देन प्लस 5 e रेस टू आई टी e रेस टू माइनस 4 आई टी माइनस e रेस टू 5 आई टी, इस तरह से इसका एक्सपेंशन होगा, ठीक है। थोड़ा आपको एक लाइन में लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपने a माइनस बी रेस टू 5 का एक्सपेंशन किया है, a माइनस बी रेस टू 5 के लिए, ठीक है। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं।
और कंबाइन करते हैं, e रेस टू 5it और e रेस टू माइनस 5it को कंबाइन करेंगे। यहाँ पे ये दोनों हो जाएगा, बेस सेम है तो इनके इंडाइसिस का एडिशन होगा 3it 4it माइनस it इज 3it। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी वैसे ही होगा, e रेस टू it e रेस टू माइनस 4it इज e रेस टू माइनस 3it, उनको कंबाइन करेंगे एंड सो ऑन। मैं इसको ना नेक्स्ट पेज पे दोबारा लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि हम लोग कंटिन्यूशन में क्या कर रहे हैं। ये हुआ सेकंड पेज, दिस इज थर्ड पेज। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, साइन रेस टू 5t इज इक्वल टू 1/32i e रेस टू 5it माइनस 5 e रेस टू 4 into it e रेस टू माइनस it प्लस 10 e रेस टू 3it e रेस टू माइनस 2it minus 10 e raised to 2it e raised to minus 3it plus 5 e raised to it e raised to minus 4it minus e raised to minus 5it। ये था पहले के पेज का जो है वो मैं कंटिन्यूशन में लिखा हुआ था। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। दिस विल बी नथिंग बट 1/32 into I inside the bracket e raised to 5it। इन दोनों को सब्स्टिट्यूट ये करेंगे, इनका बेस सेम है तो इनका एडिशन होगा 4 माइनस 1 इज 3, सो ये होगा 3it। ठीक है, फिर इनका करते हैं 3 माइनस 2, बेस सेम है, इंडेक्स का एडिशन होगा 3 माइनस 2 होगा 1, सो ये होगा प्लस 10 e रेस टू it। देन यहाँ पे माइनस 10, यहाँ पे 2 माइनस 3 होगा माइनस i, सो e रेस टू माइनस it। फिर यहाँ पे होगा प्लस 5, ये होगा it minus 4it is e raised to minus 3it, right, and the last one is e raised to minus 5it। अब आप इनको कंबाइन करेंगे, ठीक है, e raised to 5it और e raised to 5 minus 5it को कंबाइन करेंगे, e raised to 3it minus 5 e raised to 3it और e raised to minus 3it को कंबाइन करेंगे और इन दोनों को कंबाइन करेंगे। क्यों करना है वो मैं नेक्स्ट स्टेप में बताता हूँ। दिस विल बी 1/32 into I inside the bracket e raised to minus 5it e raised to 5it minus e raised to minus 5it। इन दोनों को कंबाइन कर लिया, यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर रहे तो 5 कॉमन है, सो मैं प्लस 5 अंदर रखता हूँ। अगर मैं प्लस 5 लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे इसको माइनस साइन देना होगा। एक काम करता हूँ, यहाँ पे ही माइनस साइन ले लेता हूँ कॉमन, माइनस 5, तो यहाँ पे होगा e raised to 3it माइनस e raised to minus 3it, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन कॉमन लिया और यहाँ पे तो प्लस चाहिए तो यहाँ पे भी माइनस देना होगा। एंड द लास्ट वन प्लस 10 e raised to it माइनस e raised to minus it। इस तरह से सॉल्व करना है। अब हमको करना क्या है एग्जैक्टली अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो मैंने आपको बताया था द डेफिनेशन ऑफ साइन ऑफ आई थीटा कितना होता है, साइन ऑफ थीटा होता है e raised to I थीटा माइनस e raised to minus I थीटा डिवाइड बाय 2i। सो अगर हर एक के नीचे डिनोमिनेटर में अगर मैं 2i लिखता हूँ तो ये मेरा साइन ऑफ 5 थीटा बन सकता है, ये मेरा साइन ऑफ 3 थीटा बन सकता है और ये साइन थीटा बन सकता है। लेकिन क्या चाहिए डिनोमिनेटर में 2i चाहिए, तो यहाँ पे i है मेरे पास, राइट, 32i है, तो वहाँ से मैं 2 हर एक को 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। सो व्हाट विल डू, विल राइट इट एज, अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ या 2 को शिफ्ट करता हूँ अंदर, हर एक को डिवाइड होगा वो, और i को भी शिफ्ट करता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी 1/16 रह जाएगा, अंदर जाएगा e raised to 5it माइनस e raised to minus 5it डिवाइड बाय 2i माइनस 5 e raised to 3it माइनस e raised to minus 3it डिवाइड बाय 2i। आपने सिर्फ 2i को अंदर शिफ्ट किया है। एंड द लास्ट वन 10 e raised to it माइनस e raised to minus it डिवाइड बाय 2i। ये बन जाएगा cos साइन ऑफ 5t, ये बनेगा साइन 3t और ये बनेगा साइन ऑफ t। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक बार अगर ये इस फॉर्म में आ गया तो आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म इजीली कर सकते हो। सो दिस विल बी 1/16 इनसाइड दिस इज साइन ऑफ 5t माइनस 5 साइन ऑफ 3t प्लस 10 साइन ऑफ t। इस तरह से होगा। आपने अभी तक सिर्फ साइन रेज टू 5t को जो है सिंप्लीफाई किया है, अभी तक हम लोग बस यही कर रहे थे। अब आते हैं अप्लाइंग लैप्लास ऑन बोथ साइड्स, साइन रेज टू 5t
इज इक्वल टू, यहाँ पे एक कांस्टेंट है 16, उसको हम लोग बाहर ले सकते हैं 1/16 एज इट इज, इनसाइड द ब्रैकेट लैप्लस ऑफ साइन ऑफ 5t। लीनियरिटी प्रॉपर्टी से हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, ये कांस्टेंट से इनको बाहर लेंगे, लैप्लस ऑफ साइन ऑफ 3t प्लस ये होगा 10 आउटसाइड लैप्लस ऑफ साइन ऑफ t, राइट। सिंप्लीफाई करो 1/16 एज इट इज, ये होगा व्हाट इज लैप्लस ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ 5t, दैट इज 5/s² प्लस 5² minus 5 Laplace of sin 3t is 3/s² plus 3², and the last one Laplace of 1/s² plus 1²। ये होगा आपका फाइनल आंसर। आया क्या सबको समझ में? आप बहुत हुआ तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 15 लिखेंगे और यहाँ पे 10 लिखेंगे। So this is how you have to solve any example if it is given in some trigonometric formula. First of all, you have to simplify it by using some trigonometric or trigonometric functions and then apply the Laplace transform. आया क्या सबको समझ में? आगे क्या सबको समझ में? तो हम लोग अगले पार्ट पे जा सकते हैं। सर एक बार और बता सकते हो क्या? चलो, ये है sin raised to 5t का क्वेश्चन है, Laplace transform of sin raised to 5t के लिए। क्वेश्चन इज Laplace transform of sin of 5 raised to 5t है। अब मुझे डायरेक्टली Laplace of sin raised to 5 sin raised to n का फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले sin raised to 5t को सिंप्लीफाई करना होगा। तो मेरे पास एक फॉर्मूला है sin थीटा का, दैट इज e raised to i थीटा माइनस e raised to माइनस i थीटा डिवाइड बाय 2i। उसको हम लोग अप्लाई करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं पास्कल ट्रायंगल से, और फिर क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में? उनको कंबाइन करते हैं। यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन करेंगे और फिर अगेन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा? एक मिनट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे जब आप कंबाइन करेंगे तो दिस इज नथिंग बट साइन 5t। अगर आप साइन थीटा ये बनाते हैं तो अगर मैं साइन ऑफ 5 थीटा बोलता हूँ तो यहाँ पे बस पाई थीटा आ जाएगा थीटा की जगह पे। सो दिस विल बी e raised to 5i थीटा या i5 थीटा माइनस e raised to माइनस i5 थीटा डिवाइडेड बाय 2i, ये आ जाएगा, राइट। सो उसी को यूज किया और सिंप्लीफाई किया। जब आपको इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गई, देन यू हैव जस्ट अप्लाइड द लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स, एंड देन आपको पता है लैप्लस ऑफ साइन ऑफ ए टी का फॉर्मूला क्या है एंड साइन टी का, वो फॉर्मूला यूज किया। आएगा समझ में? पीडीएफ शेयर करूंगा तो आपको और क्लियरली हो जाएगा ये, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं अब, जिसमें हम इतने एग्जांपल देखे, इसमें हम डायरेक्टली लैप्लस ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे थे, बट कुछ क्वेश्चंस जो है वो इस तरह से भी होते हैं, दैट इवैल्यूएट line integration 0 to infinity e raised to minus 2t t raised to 5 cos hyperbolic of t into dt। इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है कि इवैल्यूएट करना है आपको। अगर आप इस क्वेश्चन को हमारे डेफिनेशन से देखेंगे, व्हाट इज लैप्लस ट्रांसफॉर्म डेफिनेशन? लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t is given by integration 0 to infinity e raised to minus st into f of t into dt, राइट। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे इसको और इसको तो लिमिट आपको देखेगा कि सेम है, e raised to माइनस एस टी की जगह पे बस e raised to माइनस 2t है और फंक्शन आपका है यहाँ पे ये। कंपेयरिंग तो आपको क्या मिलेगा कि आपकी s की वैल्यू कितनी है? s की वैल्यू है 2, क्योंकि s यहाँ पे 2 दिया है, और आपका f of t कितना है आपका यहाँ पे? t raised to 5 into cos hyperbolic of t। ये पार्ट समझ में आ रहा है क्या आपके? अगर आ गया है, दैट मीन्स इवैल्यूएटिंग दिस इज नथिंग बट लैप्लस ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t फाइंड आउट करना। और इवैल्यूएटिंग दिस इट विल बी नथिंग बट Laplace transform of t raised to 5 into cos hyperbolic of t at point s is equal to 2 होगा। तो इस 2 को हम लोग अभी देखेंगे नहीं, अब बस इतना देखते हैं कि Laplace transform of t raised to 5 into cos hyperbolic of t, इसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 0 to infinity e raised to minus st into t raised to 5 into cos hyperbolic of t into dt। ये होता है ये, और ये सेम है, बस इसकी जगह पे
2 दिया है क्वेश्चन में, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले t⁵ इंटू कॉस हाइपरबोलिक t के लिए सॉल्व कर लेते हैं और फिर लास्ट के जो आंसर है उसमें s की वैल्यू 2 पुट करेंगे। आया समझ में सबको? एंड देयरफॉर लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁵ इंटू कॉस हाइपरबोलिक ऑफ t इज नथिंग बट excuse me, this will be t⁵ into cos हाइपरबोलिक t। cos हाइपरबोलिक t को अब देखो डायरेक्टली cos हाइपरबोलिक t सॉल्व करने से बेहतर है भाई यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी हमने स्टडी नहीं की है, वो हमको स्टडी करनी पड़ेगी। चलो अभी सॉल्व तो कर लेते हैं। cos हाइपरबोलिक t का फॉर्मूला होता है e⁻t प्लस e⁻t डिवाइड बाय 2। ये भी फर्स्ट ईयर के कॉम्प्लेक्स में हुआ है, ये हाइपरबोलिक फंक्शंस, उसमें इसका फॉर्मूला है। यहाँ पे साइन थीटा का देखा हमने फॉर्मूला, यहाँ पे कॉस हाइपरबोलिक का देख रहे हैं। ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन सर यहाँ पे आई थीटा था यहाँ पे नहीं है, ये हाइपरबोलिक के लिए है और ये नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्रिक के लिए है। ठीक है, सो t⁵ इंटू e⁻t प्लस e⁻t डिवाइड बाय 2 होगा ये। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं, अंदर होगा लैप्लास ऑफ t⁵ e⁻t प्लस लैप्लास ऑफ t⁵ e⁻t। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ेगी। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी क्या बताती है कि अगर आपके पास e⁻t इंटू t⁵ या इंटू f(t) है, इफ लैप्लास ऑफ f(t) is phi of s, then Laplace of e⁻at into f(t) is nothing but same answer, लेकिन s की जगह पे आपको s माइनस a पुट करना होता है। ये आगे है प्रॉपर्टी, एग्जाम्पल हमने पहले ले लिया, ऐसा होगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी है, दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, राइट। सो क्या हो जाएगा ये, दिस विल बी 1/2, इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, दिस इज लैप्लास ऑफ e⁻t इंटू t⁵ प्लस लैप्लास ऑफ e⁻t इंटू t⁵। अब आपको पता है व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁵। अगर n पॉजिटिव इंटीजर है तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय s⁵ प्लस 1, दैट इज 5 फैक्टोरियल अपॉन s⁵। ऑल ऑफ यू एग्री? लेकिन शिफ्टिंग प्रॉपर्टी बताती है कि अगर आपको e⁻at से मल्टीप्लाई है तो s को आपको s माइनस a से रिप्लेस करना होगा। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, 1, here a is 1, here a is minus 1, right? So you have to replace this answer in by s by s minus 1 and s plus 1 से। So this will be 1/2 as it is। यहाँ पे ये जो आंसर है t⁵ का, उसमें आपको s को s माइनस a से, that is s minus 1 से रिप्लेस करना होगा। So this will be 5 फैक्टोरियल अपॉन s⁵, और फिर आप नेक्स्ट स्टेप में पुट करेंगे, s को आपको रिप्लेस करना होगा बाय s माइनस 1 प्लस साइन, देन अगेन 5 फैक्टोरियल अपॉन s⁵, और अब यहाँ पे s माइनस 1, लेकिन a की वैल्यू -1 है, सो आप s को रिप्लेस करेंगे s प्लस 1 से। ये मैं लिख रहा हूँ, ये आपको डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, इसीलिए एक और स्टेप आपको ऐड की है, राइट। एंड देयरफॉर योर आंसर बिकम्स 1/2 इनसाइड, दिस इज 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय s को हम लोग s माइनस 1 से रिप्लेस कर रहे हैं, और s⁻⁶ था तो ये बन जाएगा s माइनस 1�6। सिमिलरली यहाँ पे है 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय s प्लस 1, s था, s को s प्लस 1 से रिप्लेस करना है, लेकिन ⁻⁶ है ये, राइट। अब यहाँ पे 5 फैक्टोरियल कॉमन है, सो टेकिंग 5 फैक्टोरियल कॉमन, दिस विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2, inside the bracket the answer is 1/s minus 1�6 plus 1/s plus 1�6। आया क्या समझ में? सिंपल सा एग्जांपल है, आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आगे डिस्कस करनी है, बट इवैल्यूएशन का आपने देख लिया कि आपको अगर इवैल्यूएट करने के लिए बोला है, इट इज नथिंग बट इवैल्यूएटिंग द लाइन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁵ इनटू कॉस हाइपरबोलिक, राइट। अब आपने लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t⁵ cos हाइपरबोलिक t फाइंड आउट किया, दैट इज नथिंग बट इंटीग्रेशन 0 to infinity e⁻st into t⁵ into cos हाइपरबोलिक t। लेकिन आपको तो यहाँ पे s की वैल्यू 2 चाहिए थी, आपको e⁻2t फाइंड आउट करना है, ना कि e⁻st। तो आपको क्या करना होगा, ये जो आंसर है इसमें
This is Laplace transform. This is nothing but integration 0 to infinity e raised to minus st into t raised to 5 cos hyperbolic t into dt. इसका आंसर आपने फाइंड आउट किया है, राइट? नाउ पुटिंग s इज इक्वल टू 2. सो s की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू माइनस 2t t रेज टू 5 cos हाइपरबोलिक ऑफ t into dt. दैट विल बी नथिंग बट जहाँ पे भी आपको s दिखेगा वहाँ पे आप 2 पुट करेंगे. द आंसर विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 1 upon 2 minus 1 raised to 6 plus 1 upon 2 plus 1 raised to 6. Simplify this. This is 5 factorial upon 2. यहाँ पे 2 minus 1 होगा 1, 1 raised to 6 is 1. यहाँ पे होगा 2 plus 1 is 3 raised to 6. That will be, and therefore your final answer will be 5 factorial. It is 5 factorial. 5 into 4 into 3 into 2 into 1. 20, 60, 120. So this is 120 divided by 2. यहाँ पे 1 upon 1 raised to 6 is 1 plus 1 upon 3 raised to 6. So 2 1 the 2 6 the. So this will be the final answer is 60 into 1 plus 1 upon 3 raised to 6. आया क्या समझ में? सिंपल सा इवैल्यूएशन है. आप पहले डेफिनेशन से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कुछ चेंज है क्या. अगर चेंज है तो आपको बस उतनी ही वैल्यू फाइनल आंसर में पुट करनी होगी. आया समझ में? अब आते हैं कुछ अदर प्रॉपर्टीज पे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. इफ Laplace transform of the function f of t is equal to phi of s, then Laplace transform of e raised to at, then Laplace transform of f of at is equal to 1 upon a into phi of s upon a. That means क्या कि अगर आपके पास Laplace transform of actual function है और उसी फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है तो आपको दोबारा से उसको सॉल्व करना नहीं है. जो आंसर मिला है आपको उसी में आप 1 अपॉन ए से मल्टीप्लाई करो और s को s अपॉन ए से रिप्लेस करो. ठीक है, ये हुआ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. अभी मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल के लिए. अब ये प्रॉपर्टी स्टडी कर लेते हैं. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी. फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी इज दैट इफ Laplace of f of t is equal to phi of s, then Laplace of, अगर इस फंक्शन को हमने e raised to minus at से मल्टीप्लाई किया है, e raised to minus at into f of t, देन आपको दोबारा से सॉल्व नहीं करना है. जो आंसर आपको phi of s मिला है, phi of s से मतलब क्या है कि एक फंक्शन आपको इन टर्म्स ऑफ s वेरिएबल मिला है. अब आपको क्या करना है, उसी फंक्शन में बस s को रिप्लेस करना होगा s प्लस a से. s को s प्लस a, अगर ये माइनस है तो s प्लस a से, अगर ये प्लस है e raised to at into f of t, तो क्या करेंगे आप? दिस इज नथिंग बट s को s माइनस a से रिप्लेस करेंगे. प्रीवियस एग्जांपल में हमने ये प्रॉपर्टी यूज की थी. सो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास एक्चुअल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म है और उसी फंक्शन को सिर्फ e raised to at या e raised to minus at से मल्टीप्लाई है, तो आप उस आंसर को बस s को जो है s माइनस a या s प्लस a से रिप्लेस करेंगे. आया समझ में सबको? अब दोनों प्रॉपर्टी पे बेस्ट एग्जांपल देखते हैं. इफ एग्जांपल नंबर 1, if Laplace transform of f of t is equal to s upon s square plus s plus 4, find Laplace of e raised to minus 3t into f of 2t. दो पार्ट है. एक है कि आपको f of 2t भी फाइंड आउट करना है और फिर शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी यूज करनी है. सो दोनों भी करना है. 1 बाय 1 करते हैं. आपको एक्चुअल फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म डायरेक्टली दिया है यहाँ पे, तो कैलकुलेशन थोड़ा बच गया है आपका. यहाँ पे है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ f of t है, इट इज नथिंग बट s अपॉन s स्क्वायर प्लस s प्लस 4. दिस इज योर phi of s, राइट. तो आपको बोला है कि f of 2t फाइंड आउट करो. दैट मीन्स यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला. सो f of 2t के लिए लैप्लास ऑफ
एफ ऑफ 2t बाय चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी क्या होगा, आप उसी आंसर में बस 1/a से मल्टीप्लाई करते हो। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, हियर a is 2, सो आप 1/a से मल्टीप्लाई करोगे, दैट इज 1/2 phi ऑफ s अपॉन a से, दैट इज नथिंग बट 1/a, या यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी लिख देता हूँ पहले, f of at is 1/a phi of s अपॉन a, राइट। हियर a की वैल्यू है आपकी 2, दिख रहा है कि आपको, फ्रेम के बाहर गया अभी भी नहीं बता रहे हैं। So here a is equal to 2 and therefore Laplace of f of 2t is 1/a 1/2 phi of s, phi of s ये है आपका, तो s को आपको रिप्लेस किससे करना होगा, s को आपको रिप्लेस करना होगा s/2 से, and therefore we have s upon s square plus s plus 4, इसमें आपको s को रिप्लेस करना होगा by s/2 से, and therefore आपका आंसर होगा 1/2 एज इट इज, इसकी जगह पे s/2 न्यूमरेटर में, s/2 डिनोमिनेटर स्क्वायर प्लस s/2 प्लस 4। इसको सिंप्लीफाई करते हैं क्योंकि आपको यहाँ पे नहीं रुकना है, आपको आगे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी यूज करनी है। सो ये s/2 है, दिस इज 1/2 s/2, यहाँ पे होगा s स्क्वायर बाय 4 प्लस s/2 प्लस 4, यहाँ पे एलसीएम हो रहा है 4 और ये 2 भी आ रहा है, सो सिंप्लीफाई करो इसको, दिस विल बी कंटिन्यूइंग नेक्स्ट पेज, फोर्थ पेज, number 4. So this will be Laplace of f of 2t is equal to 1/2 as it is, यहाँ से s/2 डिवाइड बाय ये होगा s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 4 इंटू 4 is 16 डिवाइड बाय 4, 4 अगर एलसीएम है तो ये 2 भी डिनोमिनेटर में जाएगा और ये 4 ऊपर जाएगा, दिस विल बी 1/2 1/s/2 इंटू s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16, और ये जो डिनोमिनेटर का 4 है वो ऊपर चला जाएगा, ये 2 और ये 4 कैंसिल होगा, एंड देयरफॉर आपको आंसर मिलेगा s/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16। ये हुआ सिर्फ शिफ्टिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से। अब आते हैं शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए, ये तो हुआ लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है लैप्लास ऑफ e⁻³ इंटू एफ ऑफ 2t। क्या करेंगे आप शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के लिए, यहाँ पे a की वैल्यू है 3 लेकिन माइनस है, तो आपको क्या करना होगा, ये जो आंसर है आपका s/s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 16, इसमें आपको s को किससे रिप्लेस करना होगा, s प्लस 3 से। आ रहा है सबको समझ में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से, एंड देयरफॉर आप जहाँ पे भी s है वहाँ पे s प्लस 3 से रिप्लेस करो, दिस विल बी s प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू s प्लस 3 प्लस 16। Simplify this, this will be s plus 3 divided by s square plus 6s plus 9 plus 2s plus 6 plus 16. This will be nothing but s plus 3 divided by s square plus 6 plus 2 is 8s, 9 plus 6 plus 16 कितना हो जाएगा 31. So this will be your final answer. So in this question we have used two properties simultaneously. First is change of scale property, other is force shifting property. समझ में आया क्या सबको? बोलो। ठीक है, next example. Example number 2. Cos hyperbolic. Find Laplace transform of cos hyperbolic of 2t cos of 2t. Now this, यहाँ पे अगर प्लस होता तो आपके लिए एकदम इजी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, सो यहाँ पे आपको पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से या कोई अदर फंक्शन से इनको सिंप्लीफाई करना होगा और तभी आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म यूज कर सकते हो। सो सबसे पहले cos hyperbolic t into cos of 2t, can I write this cos hyperbolic t, because you know that cos hyperbolic of at is e raised to at
प्लस ई रेस टू माइनस ए टी डिवाइडेड बाई 2। सो क्या मैं कॉस हाइपरबोलिक 2t के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ? दिस इज नथिंग बट ई रेस टू 2t प्लस ई रेस टू माइनस 2t डिवाइडेड बाई 2। ये हुआ पहला पार्ट इनटू कॉस ऑफ 2t, बराबर है। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे सेपरेट करते हैं, 1/2 को बाहर ले लेंगे, अंदर होगा लैप्लास ऑफ ई रेस टू 2t प्लस ई रेस टू माइनस 2t इंटू कॉस ऑफ 2t। अब इनको दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, दिस विल बी 1/2 एज इट इज लैप्लास ऑफ ई रेस टू 2t इंटू कॉस ऑफ 2t प्लस सेपरेट करेंगे बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, लैप्लास ऑफ ई रेस टू माइनस 2t इंटू कॉस ऑफ 2t, राइट। अब सिंप्लीफाई करो, दिस विल बी 1/2। शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कर रहे हैं, व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 2t? s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, बराबर है क्या? a की वैल्यू अगर 2 है तो, लेकिन आपको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी भी यूज करनी है, दैट मीन्स आपको s को किससे रिप्लेस करना होगा? s माइनस 2 से, ठीक है, बाय शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। सिमिलरली यहाँ पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos ऑफ 2t इज s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, लेकिन आपको s को किससे रिप्लेस करना होगा? अगर यहाँ पे माइनस है तो s प्लस 2c। क्या ये स्टेप समझ में आ रही है सबको? कंटिन्यूइंग दिस वी हैव s की जगह पे s माइनस 2 पुट करते हैं, सो दिस इज s माइनस 2 डिवाइड बाय s माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस s की जगह पे s प्लस 2 पुट करेंगे, दिस विल बी s प्लस 2 डिवाइड बाय s प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। दैट्स इट। सिंप्लीफाई कर लो, सिर्फ कितना हो जाएगा? दिस विल बी इनको सिंप्लीफाई करो, ये यहाँ पे रुकेंगे तो भी चलेगा, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा यहाँ पे, तो कैसे करेंगे? बोलो, अफान, संकेत, अली, असीम, शुभम। इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो या फिर देखो एलसीएम क्या है, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा आपको। फाइनल आंसर यहाँ पे है, दिस इज एस क्यूब अपॉन एस रेस टू 4 प्लस 64, तो ये थोड़ा लेंदी होगा। पहले इसको s माइनस 2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 4 प्लस 4, इसको एक्सपेंड किया, यहाँ तक आया, तो प्लस 4 प्लस s प्लस 2 डिवाइड बाई एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 प्लस 4, ये हो जाएगा प्लस 8 प्लस 8। ये दोनों टर्म्स सेम डिफरेंट है, s प्लस 2 है यहाँ पे, so this will be 1/2 as it is s minus 2 divided by s square minus 4s plus 8 plus s plus 2 divided by s square plus 4s plus 8, राइट। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? दिस विल बी 1/2। दिख रहा है क्या? दिखता भी नहीं है तो बताते नहीं है, क्या होगा? s माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 प्लस s प्लस 2 इंटू एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 8 डिवाइडेड बाय, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एस स्क्वायर माइनस 4s प्लस 8 एंड एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8। अब इनको दोनों को सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर आपको मिलना चाहिए एस क्यूब डिवाइड बाय एस रेस टू 4 प्लस 64। दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सिंप्लीफाई करो, कैंसलेशन होंगे कुछ टर्म, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपको इतना ही मिलेगा। देख लो, ट्राई करेंगे सब लोग, होमवर्क रहेगा इतना पार्ट। आया क्या सबको समझ में? ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अब मेरे ख्याल से कितना हो गया? ऑलमोस्ट
1.3 आवर्स मतलब 1.5 घंटा हो गया है, तो एक 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं। अटेंडेंस ले लूँगा तब तक मैं आपकी। लेट मी टेक योर अटेंडेंस। All right, electrical first, huh? Afaq, absent. Bojesh, Jadhav, है क्या नहीं? नहीं है। Then कैफ, अमान, अमान भी नहीं है। शोएब, मिर्जा अनीक, उमर, उमर भी नहीं है। शुभम, Present. ओके। मुकादम मोहम्मद, Present, sir. पटेल अब्दुल सबूर, Present, sir. राय अल्तमाश, अहमद रजा, मोहसिन, शेख तौसीफ, तौसीफ नहीं है। सोहेल असलम, सोलकर मोहम्मद यारूक, धुमाल ऋषिकेश। प्रेजेंट सर। कौन कौन है? सोलकर मोहम्मद है क्या? मोहम्मद यारूक सर। हाँ है, सर। ठीक है। धुमाल ऋषिकेश नहीं है, ठीक है। मुशाहिद शब्बीर, प्रेजेंट सर। ओके। खान मोहम्मद हमजा नहीं है। शाहनवाज, Present, sir. शेख अब्दुल, फैजान, Present, sir. शेख मोहम्मद शेख मेहताब, मेहताब Present, आलम, sir. ओके। Present, sir. मुल्ला उबैद, आसिफ, प्रेजेंट सर। मोहम्मद अली, Present, sir. पठान फरियाल, शेख शादाब। प्रेजेंट सर। अरे कौन है? फरियाल है क्या ये? यस सर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है शेख शादाब, ओके। ऋषिकेश, Present, sir. सुलाने स्वप्निल, Present, sir. रिजवी मोहम्मद अली नहीं है। खान दिलदार, जाधव संकेत, शेख आफरीन, प्रेजेंट सर। ओके। नाडकर अरबाज, Present sir. मुकाल मिलिंद, मोहम्मद अरफात, Present, sir. अंसारी मोहम्मद अफान, इशाक खान, Present, sir. अंसारी सलमान, Sir. ओके। मोहम्मद असीम, मोहम्मद असीम है क्या? नाइक अरफात, ठीक है। EXCC डायरेक्ट सेकेंड ईयर नाउ। अब्दुल बसीत, अब्दुल बसीत नहीं है, ठीक है। अंसारी इम्तियाज, चौधरी अरबाज, हक इंजमामुल, खान इजहार, सारा, प्रेजेंट सर। इरशाद, इरशाद नहीं है। अब्दुल कादिर, मुकादम, पूनावाला, प्रेजेंट सर। ओके। कुरैशी कुरैशी अहमद, अहमद नहीं है, ठीक है। कुरैशी शाहनवाज, Present sir.
ओके, संसारे उजैर, अर्शिया, प्रेजेंट सर। अर्शिया नहीं, हुजैफा, सैयद जहरा, Present, sir. सैयद जहरा ना, ठीक है। Arshia. अर्शिया तो बोल दिया ना, एक मिनट। हाँ, अर्शिया नहीं बोले थे, ठीक है। और ये जहरा नहीं है, ठीक है। ऑलराइट, अर्शिया है, ठीक है। ऑलराइट, तो हमने देखा आज के लेक्चर्स में कि कैसे हम लोग सॉल्व कर सर, सकते मेरी हैं attendance लैप्लास चाहिए क्या? ट्रांसफॉर्म। क्यों नहीं हुई? अंसारी मोहम्मद अफान। क्यों नहीं हुई ये पूछ रहा हूँ मैं। नहीं सर, वो माइक म्यूट था ना मेरा, इसकी वजह से पूछ ऐसा रहा चलेगा क्या? म्यूट करके कहाँ चले गए थे? ऐसा मत करो। हूँ। नहीं एक तो पहली स्ट्रेंथ कम है, DEE02 ना, ठीक। हाँ सर। ऑलराइट, लेट अस सी द नेक्स्ट एग्जांपल्स। समझ में आ गए अभी कैसे सॉल्व करना है हमको? अब आते हैं कुछ और एग्जांपल्स पे जहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग थ्योरम भी यूज होगा और हमारा एग्जांपल भी यूज होगा। ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स होंगे। एग्जांपल, फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। अब कुछ फॉर्मूलाज पहले नोट डाउन करवा देता हूँ। फॉर्मूला बहुत है इसमें, लेकिन अगर आपको फॉर्मूला आपने याद रख ली और कब कौन सा सॉल्व करना है वो समझ लिए तो आपको डिफिकल्ट नहीं होगा। फॉर्मूला है, फर्स्ट sin A cos B, 2 sin A cos B into cos of B. It is given by sin of A plus B plus sin of A minus B. Second formula is 2 cos A sin B. ये आप लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं, बट हमको इनको यूज करना है, इसीलिए आपको पहले ही फॉर्मूला दे रहा हूँ। sin of A plus B minus sin of A minus B. Third one, cos A cos B equal to 2 cos A cos B is cos of A plus B plus cos of A minus B. And the fourth one is sin 2 sin A sin B. It is given by cos of A plus B minus cos of A minus B. So ये फॉर्मूला आपको याद रखने पड़ेंगे तो ही हम लोग सॉल्व कर पाएंगे अगले एग्जाम्पल्स, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। ये फॉर्मूला आपने पहले भी स्टडी किए हैं। हो सकता है कि sin A cos B रहे तो ये 2 को आप शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। cos A sin B रहेगा तो यू विल शिफ्ट दिस 2 ऑन द राइट हैंड साइड, राइट। लाइकवाइज एग्जाम्पल नंबर 1, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 2t cos of t cos hyperbolic of 2t। अब यहाँ पे अगर प्लस होता है या माइनस होता है तो बहुत इजी होता है, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, सो यू हैव टू यूज सम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड सेपरेट देम इनटू सम सिंपलर फॉर्म एंड देन अप्लाई द लैप्लास ट्रांसफॉर्म होगा, ठीक है। ठीक है, सो फॉर्मूला नंबर यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। सबसे पहले यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में यूज कर सकता हूँ, सो दैट मैं क्या सेपरेट कर सकूँ इसको। और कॉस हाइपरबोलिक के लिए मैं e raised to 2t डिवाइड बाय प्लस e raised to minus 2t डिवाइड बाय 2 का फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे देखो साइन ऑफ, आई नो दैट 2 sin A cos B कितना होता है, तो sin A cos B ऊपर फॉर्मूला दिया है, दैट इज sin of A plus B प्लस sin of A minus B, राइट। अब क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे है 2 sin 2t इंटू कॉस ऑफ टी है, तो यहाँ पे a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 1 है, सो दिस विल बी साइन ऑफ 2t प्लस t प्लस साइन ऑफ 2t माइनस t, राइट। सिंप्लीफाई कर दो, दिस विल बी साइन ऑफ 3t प्लस साइन ऑफ t। अब मुझे 2 नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ साइन a cos b का फॉर्मूला चाहिए, तो ये 2 को मैं शिफ्ट कर देता हूँ, दिस विल बी 1/2 into this equal to sin of 2t
into cos of t, ये होगा आपका फॉर्मूला, राइट। एंड देयरफॉर वी हैव sin of 2t के लिए ये फॉर्मूला आ गया है, राइट। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा आपको, और सिमिलरली यहाँ पे cos हाइपरबोलिक के लिए क्या फॉर्मूला है, cos हाइपरबोलिक ऑफ 2t इज नथिंग बट e रेज़ टू 2t प्लस e रेज़ टू माइनस 2t डिवाइडेड बाय 2 होगा। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, सो कैन आई राइट दिस एज sin of 2t into cos of 2t, cos of t into cos hyperbolic of 2t, that will be nothing but इन दोनों के लिए फॉर्मूला है 1/2 sin of 3t प्लस sin of t, और इसके लिए आखिरी का फॉर्मूला है वो है e रेज़ टू 2t प्लस e रेज़ टू माइनस 2t डिवाइड बाय 2, बराबर है क्या। अब सेपरेट करेंगे और सॉल्व करेंगे। कैन आई राइट देम एज 1/4, बाहर अंदर होगा e रेज़ टू 2t। अब यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ पे 4 टर्म्स बनेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। तो सबसे पहले e रेज़ टू 2t sin of 3t प्लस e रेज़ टू 2t sin t, सिर्फ e रेज़ टू 2t से मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट को, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे इससे इसको प्लस e रेज़ टू माइनस 2t sin t प्लस e रेज़ टू माइनस 2t sin t होगा, बराबर है क्या। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, दिस विल बी नथिंग बट 1/4। यहाँ पे शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आपको यूज करनी पड़ेगी, शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी आ रहा है सबको समझ में, क्या होगा। सबको पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म साइन ऑफ 3t क्या होता है, 3/s²/3²। सो ये होगा 3/s²/3², लेकिन क्योंकि शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है तो यहाँ पे s को किससे रिप्लेस करेंगे आप, s-2 से, क्योंकि a की वैल्यू 2 है यहाँ पे। ये पहला अगर आपको समझ में आ गया तो बाकी की आप उसी वे में करेंगे, राइट। सेकंड है e रेज़ sin t है, sin t का फॉर्मूला होता है लैप्लास ट्रांसफॉर्म, मैंने अप्लाई नहीं किया ना लैप्लास अभी तक। लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई द लैप्लास ऑन बोथ साइड्स, इसी में भी कर सकते थे, क्यों मैंने ये कर दिया। सो अप्लाइंग लैप्लास ऑन बोथ साइड्स, दिस विल बी sin of 2t, एक मिनट बस देख लो, cos t इंटू cos हाइपरबोलिक ऑफ 2t। सो यहाँ पे भी लैप्लास आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये चाहिए तो मैं नेक्स्ट स्टेप में पूरा एक लाइन में लिखने की कोशिश करता हूँ। यहाँ तक राइट है, यहाँ पे मैंने लैप्लास अप्लाई किया दोनों तरफ। सो ये बन जाएगा 1/4 एज इट इज इनसाइड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin 3t, वो कितना होगा, ये लैप्लास का सिंबल दिख रहा है क्या सबको। सो ये होगा 3/s² प्लस 3², और आप s को रिप्लेस करेंगे s-2 से, क्योंकि a की वैल्यू 2 है यहाँ पे। यहाँ पे लैप्लास ऑफ sin t होता है 1/s² प्लस 1, और आप s को रिप्लेस करेंगे किससे, s-2 से, बिकॉज s की a की वैल्यू 2 है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे मैंने लिखना चाहिए था 3t, यहाँ पे होगा 3/s² प्लस 3², लेकिन यहाँ पे आपको s को किससे रिप्लेस करना होगा, s+2 से। सो रिप्लेसिंग s by s+2, देन नेक्स्ट वन यहाँ पे लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ sin t होगा 1/s² प्लस 1², एंड यू हैव टू रिप्लेस s by s+2। क्या ये स्टेप सबको समझ में आ रही है, एक ही लाइन में हम लोग पूरा कर रहे हैं। बुक में इसको सेपरेटली सॉल्व किया है और फिर एक बार ऐड किया है, राइट। वी आर सॉल्विंग इट इन one step only. So simplifying this is 1/4, यहाँ पे आप s की जगह पे s-2 पुट कर रहे हो तो ये आएगा s-2 होल स्क्वायर प्लस 9, प्लस यहाँ पे भी वैसे ही होगा 1/s-2 होल स्क्वायर प्लस 1, प्लस यहाँ पे 3/s², s की जगह पे s+2 होल स्क्वायर प्लस 9, प्लस यहाँ पे होगा s-2 होल स्क्वायर प्लस 1। आया समझ में सबको, बस सिंप्लीफाई कर लो, अभी ज़्यादा कुछ इतना ये करना नहीं है इसको। दिस विल बी नथिंग बट
1/4 inside this is what? 3 upon ये होगा s square minus 4s plus 4 plus 9 यहाँ पे होगा s square minus 4s plus 4 plus 1 यहाँ पे होगा 3 upon s square plus 4s plus 4 plus 9 एंड यहाँ पे होगा s square plus 4s plus 4 plus 1 राइट। सिंप्लीफाई कर दो 1/4। अब इन दोनों को आप कंबाइन कर सकते हो और इन दोनों को सिंप्लीफाई अलग से कर दो तो क्या हो जाएगा ये, दिस इज 3 upon s स्क्वायर, यहाँ पे हो रहा है 13 s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 13 तो यहाँ पे हो रहा है 3 upon s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 13 बराबर है क्या। देन इन दोनों को कंबाइन करेंगे प्लस 1 upon s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 5 प्लस 1 upon s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 राइट है। ये आया समझ में यहाँ तक। अब आप चाहिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करो, ठीक है। सो इन दोनों को कंबाइन करके सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे। कर सकते हैं इतना पार्ट। दिस विल बी 1/4 यहाँ पे होगा। अगर आप इन दोनों को कंबाइन करके सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा 3 × 2 × s स्क्वायर प्लस 13 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू 4 प्लस 10 s स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × s स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाय s रेज़ टू 4 माइनस 6s स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। ये कब होगा, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब होगा। सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये आपको करना होगा क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। इतना कर पाएंगे, दिस विल बी योर होमवर्क एंड देयरफॉर योर फाइनल आंसर विल बी यहाँ से 2 और यहाँ से 2 कॉमन होगा और यहाँ पे उसको क्या है वो डिवाइड होगा। दिस विल बी नथिंग बट कितना हो जाएगा फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 एंड 4 राइट। सिंप्लीफाई करते हैं। पेज नंबर 5, continuing on 5 we have कितना हो जाएगा फाइनल आंसर। फिर फाइनल आंसर इज sin of 2t cos of t into cos hyperbolic of 2t. This will be nothing but 3 into s square plus 13 divided by s raised to 4 plus 10 s square plus 13 square plus s square plus 5 divided by s raised to 4 minus 6 s square plus 5 square. So ये होगा हमारा फाइनल आंसर। आया क्या सबको समझ में। ये पार्ट थोड़ा लेंदी है लेकिन इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 2 ही ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमने यूज़ किए फॉर सॉल्विंग दिस। लेट मी अगेन रिवाइज यू। फॉर्मूला कौन सा था हमारा। फॉर्मूला एक है ये वाला 2 sin a cos b का और दूसरा है cos हाइपरबोलिक 2t का। आया क्या समझ में। अगर आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया तो लैप्लास अप्लाई करने के लिए डिफिकल्ट नहीं है। पीडीएफ शेयर करूंगा तो आपको और ज़्यादा ये होगा, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि इसमें डिफ़िकल्ट होगा आपको। मैं पहले से बता दूँ M3 का जो कोर्स है M3 वो डिफ़िकल्ट है एज़ कम्पेयर टू M4। सो लाइटली मत लो इसको, स्टडी करते रहो। जब भी कोई डाउट रहेगा पूछो, रेगुलरली लेक्चर अटेंड करो। ऐसा ना हो कि आपने एक लेक्चर अटेंड कर लिया दूसरा नहीं किया, तीसरा किया चौथा नहीं किया, वैसा मत करो। कंटिन्यूशन में रखो क्योंकि एक दिन आप अगर एब्सेंट रहते हो तो आपके कम से कम 3 या 4 लेक्चर आपके चले जाते हैं। तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा अगर आप एब्सेंट रहे तो, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सेकंड शिफ्टिंग थ्योरम। Second shifting theorem.